So this shloka is very important as we are now in practicing the stage of Krishna consciousness. So for sadhaka, this shloka is very important. Like as I told you in the beginning also, before starting this book, like each and every sentence and each and every shloka of this book is a very practical. Okay, like this is not the book as others books of Srila Prabhupada. Right? This book and the Nectar of Devotion, these two books are written by Srila Rupa Goswami, and they are the completely practical book. Day to day life, how we have to apply the teachings of these two books. Where are we now on the path of Krishna consciousness? How much progress is required to progress in Krishna consciousness? Right? And what type of lacking are there in Krishna consciousness now, right? And what improvement we have to do. So all these things will be covered in this in these slokas of Nectar of Instruction. So in that way, this book is very essential and helpful uh, for sadhaka. So that's why please attend and be focused and careful and attend this class and my request to all of you, please note down the important points, right? Because there is no PPT PowerPoint presentation there, so please note it down important points because instead of preaching or apart from preaching, these two books uh, are more important for our own practice. So the shloka goes like this: Atyahara priyasasya vijalpo niyamagraha janasangasya laulyam cha sadvir bhaktir vinasyati. So in this slok number 2, Srila Rupa Goswami described the 6 things which destroy our bhakti. And in the next slok number 3, Srila Rupa Goswami will explain the 6 things which enhance bhakti or which are helpful in our Krishna consciousness. So, but in this particular shloka, we will see what are the 6 things which are unfavorable for devotional service or which destroy our bhakti. So, we should know these 6 things. Huh? So, what are those 6 things? Atyahar, prayasasya, prajalpo, niyamagrah, jan sangas and rolyam. Okay. तो एक एक का मीनिंग हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन. So ati ahar, like what do body meaning is there, is very important to know meaning, right? Ati ahar, atyahar. अति का मतलब क्या होता है? ओवर, कुछ भी चीज में, ओवर ईटिंग है ना, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओवर सीइंग, ओवर हियरिंग, ओवर स्लीपिंग, राइट? तो हर चीज में जो अति होती है, जो एक्स्ट्रा होता है, उसको बोलते हैं अति. अति जैसे आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा, सूक्तियां, सुभाषितम, अति सर्वत्र वर्जित. अति जो होती है वो हर जगह है, उसको वर्जित किया गया है, सर्वत्र वर्जित. तो अति आहार मीन्स ओवर ईटिंग और टू मच कलेक्टिंग. ओवर ईटिंग और टू मच कलेक्टिंग. तो ज्यादा खाना, मतलब बॉडी की नीड से ज्यादा खाना, वो किस में चला जाता है? ओवर ईटिंग में. तो हमें एक्चुअली क्या है, ना तो ज्यादा कम खाना चाहिए, ना ही ज्यादा खाना चाहिए. ये जो चीज है ये भगवत गीता में भी डिस्क्राइब किया गया है. 6 चैप्टर 17 नंबर श्लोक 6.17 में भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं. और आज मैंने, अगर आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा, मैंने ग्रुप में छोड़ा है ना, एक फेमस जो सर्जियन है ना, वो बोल रहे हैं वहां पर पेशेंट को बोल रहे हैं कि अगर तुम भगवत गीता को अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये जो वीडियो है ये मतलब बहुत फेमस हो गया है अभी, क्योंकि एक सर्जन, एक डॉक्टर बोल रहा है. मतलब डॉक्टर, अगर कोई देखो, अगर कोई साधु अगर गीता के बारे में सलाह दे रहा है तो मतलब फिर भी लोग सोचते हैं हाँ ठीक है, वो तो साधु है तो गीता के बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे. लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट सर्जन डॉक्टर अगर गीता के बारे में अगर बोले तो नाउ यू कैन वेल इमेजिन.
ठीक है, कितना इफेक्टिव होगा वो वीडियो, है कि नहीं? डॉक्टर खुद बोल रहा है यू फॉलो भगवत गीता, टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, व्हाट कृष्णा हैज टोल्ड टू अर्जुन, और वो उस वीडियो में वो श्लोक भी बता रहे हैं। कौन सा? ये वाला श्लोक उन्होंने बोला है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भगवति दुःखः। तो सेम चीज है ना, आहार विहार, स्लीप एंड स्वप्न मीन्स दिस रिक्रिएशन। तो आहार विहार, युक्त आहार विहार से युक्त स्वप्न प्रबोध से योगो भगवती दुःखः। तो जो व्यक्ति ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन और वर्क, है ना, चार चीजों को जो कंट्रोल कर लेता है, तो उसका जो जीवन है पूरा क्या होता है? पीसफुल होता है, राइट। और उसको बॉडली, मेंटली, इमोशनली, है ना, किसी भी प्रकार से कुछ भी उसको डिजीज नहीं होता है, ठीक है। तो ओवर ईटिंग, तो अति आहार ये जो यहाँ पे खाली ईटिंग के पर्पस के लिए नहीं बोला गया है, ऑल्सो टू मच कलेक्टिंग, है ना, जितना नीड है उतना ही कलेक्शन करना चाहिए, उतना ही पैसा को यूज करना चाहिए। नहीं तो वो ज्यादा कलेक्शन करने से फिर क्या होता है, अगर उतना आपकी जरूरत नहीं है शरीर के लिए, बॉडी की जितना जरूरत नहीं है, तो अगर एक्स्ट्रा जो पैसा होने से फिर क्या होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में निश्चित रूप से लगता है। मन में विचार आता है कि हाँ मेरे पास तो पैसा है, तो अब इसको कहाँ करूँ, फिर विचार करते हैं, प्लानिंग चलता है, फिर मन सोचता है कि हाँ अभी तो पैसा रखा हुआ है, अब इसको कहाँ खर्च करूँ, तो निश्चित रूप से फिर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में ही जाएगा। इसलिए ओवर कलेक्टिंग भी इस ठीक नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर द डिवोटीज, है ना। जो भी हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है एक्स्ट्रा लक्ष्मी आपके पास है, तो देन यूज इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रादर देन टू यूटिलाइज फॉर योर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अदरवाइज दैट विल लीड है ना, कर्म बंधन। तो it is also the same thing described in the Srimad Bhagavatam also, है ना। Then next, prayasaha means over endeavoring, है ना। Then prajalpaha means idle talk. Then niyam means rules and regulations. Agraha, too much attachment, and agraha means too much neglect. दोनों में अंतर है, एक है आग्रह और दूसरा है अग्रह, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। आग्रह का मतलब क्या होता है? टू मच अटैचमेंट, और अग्रह का मतलब क्या होता है? टू मच नेग्लेक्ट, तो बोथ आर डिफरेंट। देन जनसंघः मींस एसोसिएशन ऑफ वर्ल्डली माइंडेड पर्सन, जो लोग डिवोटीज नहीं है उनका हमें संग नहीं करना चाहिए। देन लॉलियन मींस ardent longing or greed, इस तरीके से दीज आर दी सिक्स थिंग्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन। कैन somebody read the translation? Anyone can unmute yourself and read the translation. हरे कृष्णा प्रभु जी। Okay, Sachidanand. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. First one is eating more than necessary or collecting more funds than required. Second one is over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Third one is talking unnecessarily about mundane subject matters. Fourth one is practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. Fifth one is associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. Sixth one is being ready for mundane achievements. Hare Krishna. हाँ, तो इनका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो पहला क्या था? अत्याहार, मतलब शरीर की जितनी डिमांड है उतना ही खाना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, भगवत गीता से कनेक्टेड है एक्चुअली ये वाला श्लोक, है ना। युक्त आहार
युक्त आहार, मतलब जो ईटिंग की जो हैबिट है उसको रेगुलेट करना है। कैसे रेगुलेट करना है? कि शरीर की जितनी डिमांड उतना ही खाना, जिसमें मतलब जिस जितना खाने के बाद आपको लगे कि हाँ बस अभी ठीक है, तो उतना ही खाना चाहिए जिससे कि आपका जो बॉडी है वो काम करे, सही से काम करे, है ना। इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए कि खाने करने के बाद फिर बस खाली एक ही काम बचता है, बस क्या, सोना। जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, हैवी स्टोमक बहुत हैवी हो जाता है, तो फिर काम करने की इच्छा नहीं होती है, फिर क्या आता है, नींद आता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, फिल्टर है, फिल्टर, उसकी भी एक क्या है, कैपेसिटी है कि वो उतना ही क्या कर सकता है, झेल सकता है। अब उसमें अगर आपने कुछ उसकी क्वांटिटी के हिसाब से अगर ज्यादा डाल दोगे तो क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, वो प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, वो सही से काम नहीं कर पाएगा, लोड हो गया ना, ओवरलोड ओवरलोड कर दिया उसको, अंडरस्टैंड, तो फिल्टर काम नहीं करता है फिर वो। तो इसलिए ज्यादा ओवर ईटिंग करने से क्या होता है, नींद आती है, और जब नींद आती है तो फिर क्या होता है, ना ही भक्ति होती है ना ही पढ़ाई होती है, कुछ भी सही से नहीं हो पाता है। तो इसलिए उतना ही खाना चाहिए जितना कि क्या है, शरीर की डिमांड है, नीड है। तो वो दो चीजें हैं अलग अलग, एक होता है नीड और एक होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो दोनों को समझना पड़ेगा हमें। तो देखो रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना, रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन नीड का मतलब होता है कि जितने में आपका काम चल जाए उसको नीड बोला जाता है, बेसिक, बेसिक कि हाँ इतने इतना होने से मेरा काम चल जाएगा। भाई जैसे मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, 10,000 का मोबाइल है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ 10,000 का जो मोबाइल है इसमें मेरा काम चल जाएगा, बात करने के लिए भी सफिशिएंट है, व्हाट्सएप करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, और जितना भी मतलब मिनिमम जो मेरा पर्पज है मोबाइल के माध्यम से जो मैं चाहता हूँ वो फुलफिल हो रहा है। 10,000 का मोबाइल जब इससे पर्पज मेरा फुलफिल हो रहा है तो फिर मुझे मैं 30,000 का या 50,000 का या एप्पल या आईफोन क्यों खरीदूंगा, जरूरत नहीं है ना। अनिश्चित फिर क्या होगा, उस सेंस ग्रेटिफिकेशन में हो जाएगा फिर। एक्चुअली व्यक्ति मालूम माया के प्रभाव में कब पड़ जाता है, कब चपेट में आता है, कब इंद्र तृप्ति में फंस जाता है, जब जितना जरूरत की वस्तु उसको होती है लेकिन वो उससे ज्यादा एक्सेप्ट करता है, तभी वो इंद्र तृप्ति कहलाता है। इंद्र तृप्ति की परिभाषा ही यही है एक्चुअली, कि बॉडी की जितना नीड है, सपोज जैसे आपको 4 चपाती में खाने से आपका पेट भर जाता है, लेकिन अब क्या हुआ कि किस दिन फीस्ट हो गया, पूड़ी बना, अब आपको फेवरेट है, आप उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने 10 पूड़ी दबा दिया, तो शुरू शुरू में तो आपको अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद फिर क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर वॉमिटिंग होने लगेगा, अपच हो गया, इंडाइजेशन हो गया। तो फिर उसको डाइजेशन करने के लिए फिर आप इनो लेते हो और बहुत सारी मतलब गैस का प्रॉब्लम हो गया, गैस्ट्रिक है, तो ये होता है। तो पहले भोग करते हैं हम, उसके बाद फिर रोग हो जाता है, उसको क्योर करने के लिए फिर हम मेडिसिन लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो डिजीज होने का कारण कौन है, हम खुद ही हैं वास्तव में, क्योंकि हम अपने सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। सही बोले, अगर कोई व्यक्ति अपने सेंस पे कंट्रोल करे तो 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है, 50%, अगर केवल आप अपने इंद्रिय पे कंट्रोल कर लेंगे अगर, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए, आप सोच लो कि हाँ चाहे फीस्ट हो चाहे जो हो, जितना मुझे खाना है बस उतना ही खाऊंगा, भले ही 20 आइटम बने हैं फीस्ट में, ठीक है, 4-5 प्रकार की स्वीट बनी है कि नहीं, 2-3 प्रकार की पूड़ी बनी है और 5-6 प्रकार की वैरायटी की सब्जी है, ठीक है होगा, लेकिन मेरी बॉडी के लिए कितना सपोर्ट करता है मैं उतना ही लूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर 20 प्रकार के आइटम बने हैं तो 20 ही आइटम मुझे लेना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप खुद से चूज कर सकते हो कि हाँ ज्यादा ऑयली फूड मुझे नहीं खाना है, ज्यादा तीखा मुझे नहीं खाना है, देखिए जो भी हो, ज्यादा ऑयली, ज्यादा तीखा, ज्यादा चटपटा, ये क्या है ना, ये रजोगुण में आता है, और जब रजोगुण में जब हम खाना खाते हैं ना तो फिर वो क्या होता है, लस्टी डिजायर पैदा करता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, है ना। तो ये भगवत गीता में कृष्ण बोल रहा है, जब अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि मेरी इच्छा तो नहीं है गलत काम करने के लिए, कि नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे विवश कर रही है काम, मतलब उस गलत काम करने के लिए, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि पार्षणेन बलादि नियोजितः। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर कर रही है, forcing me, then what Krishna answer, काम ऐसा क्रोध ऐसा। अर्जुन, ये काम है, काम वासना लस्ट है, ये जो कि कहां से उत्पन्न होता है, रजोगुण समुद्भव, जो कि रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है, और महासनो महापापमा, और ये रजो और ये काम ही है, लस्ट ही है जो क्या करता है, गलत से गलत पाप कर्म करने के लिए मजबूर करता है। तो इसलिए अब इसका उपाय क्या है, कैसे कैसे करें, रजोगुण को तो खत्म करना है। भाई लस्ट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, रजोगुण से, उसका उद्भव पॉइंट क्या है, उसका ओरिजिन रजोगुण।
इसलिए रजोगुण में जो जो चीजें आती हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा, तभी जो है लस्ट थॉट को खत्म किया जा सकता है। इसलिए बोला गया है कि ज्यादा ऑयली, ज्यादा तीखा, ज्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए। जितना सिंपल फूड हो सकता है उतना खाना चाहिए, जितना सिंपल। इसलिए मंदिर में सिंपल प्रसाद बनाया जाता है। सिंपल क्यों? क्योंकि वो बॉडी के लिए, हमारी बॉडी और सेंसेस माइंड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। इसलिए मंदिर में बहुत सिंपल प्रसाद बनता है, बहुत सिंपल। ना ज्यादा मिर्ची डालता है, ना ज्यादा तेल डालता है। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो मतलब लस्टी डिजायर से फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद पाते हैं, वो सिंपल प्रसाद होता है। हम लोग क्या बहुत हैवी हैवी पा लेते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो व्यक्ति जो बना रहा है वो साधु नहीं है, वो डिवोटी नहीं है, वो असाधु है, वो नॉन डिवोटी है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। खाने पीने का तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे सेंसेस के ऊपर, हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर। इसलिए बार बार जोर दिया जाता है कि किसी प्रकार से अगर पॉसिबल हो तो प्रसाद पाने का ही प्रयास करें। एटलीस्ट अगर अगर आपको प्रसाद नहीं मिलता है तो ट्राई कीजिए विदाउट ऑनियन गार्लिक खाने का। और ज्यादा तीखा, ज्यादा ऑयली, ज्यादा सॉल्टी प्लीज अवॉइड। टू मच सॉल्टी, टू मच ऑयली, टू मच चटपटा, avoid these things, these right, these things are very dangerous for our health। जब क्योंकि आप खुद देखिए ना, जब हेल्थ खराब हो जाता है तो ना ही भक्ति सही से कर पाते हैं, बहुत एजिटेट फील होता है, यू नो, वी फील वेरी एजिटेटेड। और मतलब तो ना पढ़ाई में मन लगता, कुछ में भी मन लगता है ना, माला करने में जब लगता है। सपोज सोचो जब आप सुबह सुबह उठे और आपका पेट क्लियर ना हो, पेट साफ ना हो, हाउ यू फील दैट डे। पूरा दिन ऐसा लगता है कि आज मेरा पूरा दिन बेकार चला गया, मैं कुछ भी सही से नहीं कर पाया। क्यों? मेरा पेट साफ नहीं हुआ। दिन में कम से कम 5-6 बार तो बाथरूम होके आ गया, हर 10 मिनट में बाथरूम में आना पड़ता है। कैसा बैड फील होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ना माला सही से हो पाया, ना पढ़ाई करने सही से हो पाया, कुछ भी सही से नहीं होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ है कि हेल्थ खराब हो गया। तो हेल्थ, तो हमारा जो हेल्थ है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी करियर के लिए और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। इसलिए हमें अपनी हेल्थ को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हमें हमेशा हेल्थ के लिए ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज खाना है, कौन सी चीज नहीं खाना है। ये भी तो एक मशीन है ना भाई। जैसे कार है, वो पेट्रोल से चलती है, अब उसमें तुम डीजल डालोगे तो कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो जो उसका फूड है उसको वही खाना खिलाना पड़ेगा ना। जैसे मीट ईटिंग है तो वो तो बॉडी का, वो ह्यूमन ह्यूमन फूड नहीं है वास्तव में, है ना। तो इसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार खाना खाना, किस प्रकार खाना नहीं खाना। ठीक है। देन ओवर, सेकंड अत्यार प्रयासश्च, प्रयासश्च, प्रयास means over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain। over endeavoring for mundane things, तो किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा एंडेवर करना, है ना। अब एक्स्ट्रा एंडेवर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बहुत सारी मटेरियल डिजायर होती है ना। तो इसलिए मटेरियल डिजायर को फुलफिल करने के लिए हम ओवर एंडेवर करते हैं, जितना की जरूरत है ही नहीं। इसलिए हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो डिवोटीज मतलब हार्ड, डिवोटीज का मतलब होता है जो दिमाग से काम करते हैं। ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो इसलिए उतना ही काम करना चाहिए, उतना ही एंडेवर करो, उतना ही परिश्रम करो जितना जरूरत है। और वो तभी होगा, है ना, जब आपकी सेंसेस क्या हो, कंट्रोल होगी। अगर सेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर ओवर एंडेवरिंग होगा ही होगा। क्योंकि तो आपको सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपका मन जो है वो आपके संयम में नहीं है, अगर मन आपका कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? अब जब पढ़ाई करने के लिए जब बैठोगे तो अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आपको लग रहा था हाँ ये तो 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, लेकिन चूंकि आपका मन कंट्रोल नहीं था, है कि नहीं, तो क्या होगा? वो उसी 1 घंटे, वो जो 1 घंटा है वो 4 घंटे में कब बदल जाएगा वो पता नहीं चलेगा। बोलो अरे ये तो 1 घंटे का भी नहीं था, ये 4 घंटे कैसे लग गए इसमें? क्योंकि आपका जो मन था वो कंट्रोल नहीं था। इसको बोलते हैं ओवर एंडरमेंट। तो अल्टीमेटली अब देखा जाए तो की पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है? टू कंट्रोल द सेंसेस, कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस। जब मन और हमारे सेंसेस जब कंट्रोल हो जाएंगे तो बाकी सारी चीजें लाइन में आ जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली सब हो जाएंगे। ओवर एंडरविंग फॉर मंडन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। देन प्रयास, प्रजल्पः, प्रजल्पः मींस टॉकिंग अननेसेसरी अबाउट मंडन सब्जेक्ट मैटर्स। ये भी बहुत डेंजरस है भक्ति के लिए, है ना।
टॉकिंग अननेसेसरी अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर। तो मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स मतलब ऐसे ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मैटर्स जो ना तो हमारे करियर के लिए और ना ही हमारी भक्ति के लिए क्या है हेल्पफुल है, वो मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स बोलते हैं। पॉलिटिक्स की चर्चा करना, मूवीज की चर्चा करना, न्यूज़पेपर की चर्चा करना, है ना, हिस्ट्री के बारे में चर्चा करना, वॉर के बारे में चर्चा करना, इलेक्शन के बारे में चर्चा करना, ये सब चीजें ना तो हमारे करियर से रिलेटेड है ना ही हमारी भक्ति से रिलेटेड है कि नहीं। भाई जैसे वो न्यूज़पेपर में आ गया कि हाँ आज यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट गिरा तो 150 लोग मर गए, ठीक है मर गए, तो उसमें तुम्हारा क्या लॉस हुआ, ये तुम्हारी भक्ति में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और ये तुम्हारे करियर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, ठीक है, तुम्हारा क्या फायदा उसमें। तो भक्तों के लिए ये सब टाइवेशन चीजें हैं, बल्कि हमें ज्यादा समय कहाँ पे बिताना चाहिए जिससे हमारे करियर में और हमारी हमारी भक्ति में प्रोग्रेस हो। तो मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स ये बहुत ही खतरनाक है हमारी भक्ति के लिए। तो एनीथिंग बेसिकली मंडेन सब्जेक्ट मैटर की कैटेगरी में कौन से आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट मैटर विच आर नॉट रिलेटेड टू कृष्ण कथा, जो कि कृष्ण से भगवान की ग्लोरिफिकेशन से भगवान के भक्तों ग्लोरिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो सब किस में जाते हैं मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स। उनको बोलते हैं ग्राम्य कथा, है ना, ग्राम्य कथा मतलब मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स। तो ये सो बी केयरफुल not to talk unnecessary things which are unfavorable for your devotion. प्रजल्प practicing them अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियम आग्रह। तो पहला है नियम आग्रह, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them, and not for the sake of spiritual advancement. इसको बोलते हैं नियम आग्रह। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन जस्ट फॉर फॉलोइंग देम, हाँ क्योंकि हमारी अथॉरिटी ने बोला है इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जस्ट फॉर द मतलब एज ए फॉर्मेलिटी, मतलब है कि नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं इसलिए। अब चूंकि मंदिर में रहना है तो मंगल आरती करनी है क्योंकि वो बोला गया है, अथॉरिटी का है, रूल बनाया है, नहीं करेंगे तो फिर रह नहीं पाएंगे। बैठ के जब करना है कि नहीं, प्रपाद रूप पढ़नी है और कुछ सेवा करना है, ये क्या है मतलब पर्पस के लिए नहीं है, किस लिए कर रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम किसलिए कर रहे हैं, केवल क्योंकि बोला जा रहा है इसलिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि जिस दिन वो बोलना बंद कर देंगे उस दिन हम ढीले पड़ जाएंगे। सपोज टेम्पल पर्सन कहीं बाहर चले जाते हैं, हमारे कहीं बाहर चले गए तो हम उस दिन हम मिल गए, चलो अभी तो कोई देखने वाला है नहीं, जब वापस आएंगे तब उस दिन से शुरू करेंगे मंगल आरती, आप उस दिन रेस्ट कर लेते हैं, बहुत हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे थे बस, है कि नहीं। लेकिन जब आप ये पर्पस के लिए हो जाएंगे कि नहीं नहीं, पर्पस क्या है, मंगल आरती में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है इसलिए मंगल आरती में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भक्ति में एडवांसमेंट करना है, मेरा भक्ति वृद्धि होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब टेम्पल प्रेसिडेंट चाहे मंदिर में रहे या चाहे नहीं रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मंगल आरती में प्रेसिडेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो मंगल आरती में खुद के एडवांसमेंट के लिए कर रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं नियम आग्रह, है ना। तो नियम आग्रह मतलब व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता, वो केवल किस लिए करता है, जस्ट फॉर सेक ऑफ द फॉर्मेलिटी, जब तक बोला जाएगा तब अच्छे से करेगा, जैसे ही छोड़ देंगे बस नहीं करेगा। इसको बोलते हैं नियम आग्रह, मतलब प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम, बस केवल फॉलो कर रहा है बस, नॉट फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, पर्पस क्लियर नहीं है उसका, नियम आग्रह। और आगे हम परपट में देखेंगे प्रपात को और कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं, नियम आग्रह। आग्रह मतलब क्या होता है, रिजेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली और व्हिमसिकली। मतलब अभी तो मतलब ये पूरा नेगेटिव ही हो गया, मतलब कि कुछ किसी प्रकार कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे मंगल आरती करना है, बोले नहीं फिर तबियत खराब, मतलब वो किसी समहाउ उधर को एस्केप करना चाहता है उससे, और उसके लिए वो हर प्रकार से बहाने बनाएगा, मतलब हर प्रकार के रूल्स रेगुलेशन क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा वो, मतलब शास्त्र की बातों पे भी उसको विश्वास नहीं होगा। एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली मतलब उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, मुझे क्या अच्छा लगता है। और व्हिमसिकली मींस जो अथॉरिटी के निर्देश से भी क्या है बाहर है,
ना, उसको बोलते हैं whimsically। तो ये है नियम अग्रह, है ना। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को ही क्या कर दिया पूरा, मना रिजेक्ट कर दिया। दे लाइक श्रील प्रभुपाद गिव अस 4 regulative principles, राइट। नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इल्ड सेक्स, नो गैम्बलिंग, है। तो जो उनको फॉलो कर रहा है तो वो किस में जाएगा, नियम आग्रह में जाएगा। एटलीस्ट कम से कम फॉलो तो कर रहा है एटलीस्ट। लेकिन जो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा वो किस में जाएगा, नियम आग्रह में जाएगा। इसको और भी रूल्स मतलब इसकी एग्जांपल है वो मैं आपको बताऊंगा और आगे जब हम आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है फिफ्थ, है ना, जनसंगस्य। जनसंगस्य मींस एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पर्संस हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्सेप्ट। तो आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग डिवोटी हो, ये हर लेवल पर ये होता है ना। जब हम घर पे रहते हैं, मतलब कि जिन लोगों से हमारा मिलना जुलना हो रहा है, वो चाहे आपके रिलेटिव हों, वो चाहे आपके फ्रेंड हों, ठीक है, या फिर आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हों, जो भी हों, अगर वो लोग डिवोटी नहीं है तो क्या होगा, हमारी भक्ति नीचे चली जाएगी। तो ऐसे लोगों का संग करना कि जिनका कृष्णा कथा में कोई रुचि है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, क्या आप संग करोगे तो बार बार वो बोलेंगे, तो जब बोलोगे आप तो आपकी इच्छा है नहीं सुनने की, धीरे धीरे फिर क्या होगा, आपकी भक्ति डाउन हो जाएगी। सो इसलिए एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पर्संस हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा, सो अवॉइड सच टाइप ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। नॉन डिवोटी एसोसिएशन हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे अच्छा है अकेले रहो, बेटर है टू लिव अलोन, बट डोंट एसोसिएट विद द नॉन डिवोटी, otherwise they will spoil of your whole devotional service. Then six, being greedy for mundane achievement। तो ग्रीडी हमें होना चाहिए, लेकिन किसके लिए होना चाहिए, मंडेन अचीवमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, कि भगवान की प्रति रुचि कैसे बढ़े, राइट, माला में कैसे मन लगे, बुक रीडिंग में मेरा कैसे मन लगे, भगवान की सेवा में कैसे मन लगे, इसके लिए होना चाहिए। लेकिन अगर मंडेन अचीवमेंट के लिए पोस्ट पोजीशंस, मनी, धनम देही, जन्म देही, सुंदरीम देही, चेतन महाप्रभु ना धनम ना जन्म, लेकिन अगर इनकी हम कामना करते हैं कि धनम देही, जन्म देही, सुंदर देही, ये क्या है, हाँ, इसको बोलते हैं क्या, लॉल्यम। लॉल्यम फॉर मंडेन अचीवमेंट। ये जो 6 चीजें हैं, इससे क्या होता है, जब हम भौतिक चीजों के प्रति लालसा व्यक्त करते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, मटेरियल, वेल्थ, पोस्ट पोजीशन, तो इससे क्या होता है, हमारी भक्ति खत्म होती है। तो ये 6 चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। So now we will read from Srila Prabhupada purport, and this is very important. So someone can read. Abhay, you want to read? Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad Pranam. Ji Prabhuji. Human life is meant for plain living and high thinking. Since all conditioned living beings are under the control of the Lord's third eye energy, this material world is designed so that one is obliged to work. The Supreme Personality of Godhead has three primary energies or potencies. The first is called the Antaranga Shakti or the eternal potency. The second is called the Tatsata Shakti or the marginal potency. The third is called Bahiranga Shakti or the external potency. The living entities constitute the marginal potency and they are situated between the internal and the external potencies. Being subordinate as eternal servant of the Supreme Personality of Godhead, the Jiva Atmas or atomic living entities must remain under the control of either the internal or external potency. When they are under the control of the internal potency, they display their natural constitutional and activity, namely constant engagement in the devotional service of the Lord. This is stated in the Bhagavad Gita chapter 9, verse 13. ये भी पढ़ना है प्रभु जी? Yes, please read the shloka also. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्. O son of ज्ञातवा Parth, पढ़ते हैं।
क्या? ज्ञात्वा, ज्ञात्वा। JNA, उसको पढ़ते हैं ज्ञा। ज्ञात्वा ज्ञात्वा भूतादिन अव्याम अव्यायम. O son of Partha, those who are not deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. Okay, Prabhuji. ओके, तो यहाँ बोल रहे हैं द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, पहली लाइन में ही इस पैराग्राफ का एसेंस बता गया है क्या? द ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आप लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा, राइट? है ना? तो इनका भी यही सेम ही स्लोगन था, है ना? क्या? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ऑल्सो सेज द सेम थिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल जीवन हमें जीना चाहिए, हमारा लाइफ सिंपल होना चाहिए, लेकिन हमारी जो सोच है वो क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा पूरा स्ट्रिक्ट चलते थे। आपने देखा ना प्रभुपाद कैसे चलते थे? उनकी जो जो क्या बोलते हैं इसको, दाढ़ी, चिन्ह हमेशा ऊपर रहता था प्रभुपाद का। आप देखना प्रभुपाद कैसे चलते, उनका जितना फोटो देखेंगे आप, उनका चिन्ह हमेशा ऊपर रहता था। इसका मतलब क्या इंगित करता है? वो प्रभुपाद हमेशा केवल बहुत ऊपर का सोचते थे। एक बार प्रभुपाद बोलते हैं कि आई हैव ओनली वन डिजीज, आई कांट थिंक स्मॉल। तो ये प्रभुपाद से हमें सीखना चाहिए क्यों, है ना? ये एटलीस्ट कम से कम हमें हमारा जो प्लान है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट हमें कहाँ से करना चाहिए? लेकिन जमीन से। प्लान हमेशा ऊंचा होना चाहिए, है ना? लेकिन शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? स्मॉल से, थोड़ा 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 करके ऐसा करें। लेकिन हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो अल्टीमेट जो गोल है वो बहुत हमारा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, है ना? लेकिन शुरुआत पूरा ग्राउंड लेवल से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं, मायापुर TUVP जैसे भी बन रहा है मायापुर में, तो प्रभुपाद का वो डिजायर था कि हाँ इसको बनाना है, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि एक दिन में मायापुर का जो TUVP है वो खड़ा हो गया, है कि नहीं? कितने सालों साल लग गए हैं और अभी भी चल रहा है कि नहीं? लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ? थोड़े से हुआ ना। प्रभुपाद ने उस समय 2 एकड़ जमीन खरीदी थी मतलब ये मायापुर के लिए, लेकिन अभी आप देखें 1000 एकड़ जमीन है वहां। तो सडनली नहीं हुआ है एक दिन में या एक रात में हो गया हो, नहीं, धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली। अभी देखो आप, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर वहां बनने जा रहा है। लेकिन रूपा जो है, जो जो हाँ, जहाँ 24 आवर्स कीर्तन चलता है उसको भी रखे हैं प्रभुपाद, उसको मना किए कि उसको नहीं मिटाओ। कुछ भक्त लोग उनसे बोले प्रभुपाद से, शिष्य के, प्रभुपाद अभी तो TUV बनने जा रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये झोपड़ी तो बेकार लगेगी उसके आगे। मतलब एक तरीके से चंद्रमा में जो ब्लैक स्पॉट है वो वैसा लगेगा। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ठीक है, इसको हमेशा ये हमेशा रहेगा, ताकि ये लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और मैं उसको कहाँ से कहाँ तक लेके गया हूँ। ये पता होना चाहिए ना कि मैंने कितना परिश्रम किया है इसके लिए। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ पहले झोपड़ी थी, कहाँ थी, क्या पता, उसका तो कुछ प्रूफ भी नहीं है, मिट गई वो तो है ही नहीं। होना चाहिए तो पता चले कि हाँ मैंने कहाँ से कहाँ तक लेके गया हूँ मैं। इसलिए प्रभुपाद का सोच देखो कितना ऊंचा है, प्रभुपाद का थिंकिंग। तो ये वास्तव में हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। क्या? सिंपल लिविंग होना चाहिए हमारा, हमारा खाना पीना कपड़े ये सब पूरा सिंपल, पूरा प्लेन होना चाहिए, ठीक है? लेकिन हमारी जो सोच है वो क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए, प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग। लेकिन अभी क्या हुआ, कलयुग में क्या हो गया, लोगों ने पूरा इसको उल्टा कर दिया है। अभी क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड लो थिंकिंग, इवन नो थिंकिंग, राइट? कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड नो थिंकिंग, जीरो थिंकिंग। तो अभी क्या हो गया, पूरा खाना पीना रहना सोना पूरा आलीशान होना चाहिए पूरा एकदम, है ना? इसने क्या किया, हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ के रख दिया है कि नहीं? नो रेगुलेशन फॉर ईटिंग हैबिट, है ना? कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। इसलिए लोग क्या है, डिजीज हो रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसी लोगों की डेथ का कारण क्या है? लोग खुद ही है वास्तव में, दूसरों को दोष देते हैं, है ना? एक्चुअली वी आर रिस्पॉन्सिबल अवर ओन। हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, दूसरों को हम क्या दोष देंगे? हम खुद ही सेंस कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरों को दोष देते हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है एक्चुअली वास्तव में, दूसरों के अंदर हम क्या खोजेंगे, है कि नहीं? प्रॉब्लम इज विद इन अस, वी हैव टू कंट्रोल अवर सेल्फ। भाई तुम्हें कोई थोड़ी जबरदस्ती मीट मीट खिला रहा है कि नहीं नहीं आप मुंह फाड़ मैं खिलाता हूँ,
जबरदस्ती तुम्हें क्या कोई मीट दे रहा है क्या? जबरदस्ती तुम्हें कोई गुटखा खिला रहा है क्या? जबरदस्ती क्या तुम्हें कोई बियर पिला रहा है क्या? नहीं, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी स्वेच्छा है। तुम बोलोगे तो तुम वो दे देगा, नहीं नहीं जाओगे तो नहीं देगा, है कि नहीं? तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना वो। तो इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जीवन का सिद्धांत ये है, हमारे जीवन का सिद्धांत बस यही है, हमारा पूरा जीवन क्या, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगर इस सिद्धांत को अगर अपना लेते हैं तो हमारा जीवन पूरा सुखमय हो जाएगा। मतलब इस लाइफ में भी हम बहुत पीसफुली रह सकते हैं। आपको ये फील नहीं हो पाएगा, कभी फील नहीं होने देंगे कि ये जो भौतिक जगत है ये भी क्या है, कष्ट का कारण है, कभी फील नहीं होगा अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनाते हैं। और ये प्रिंसिपल प्रभुपाद लेके आए हैं इस्कॉन के अंदर, कृष्णा कॉन्शियस के अंदर। बाहर की जगत में ये प्रिंसिपल नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में तो क्या उल्टा है, कॉम्प्लेक्स लिविंग है और नो थिंकिंग है। पीपल दे डोंट हैव एनी थिंकिंग, कोई प्लान ही नहीं है उनका, क्या करना है आगे जाके कुछ पता नहीं, बस प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं बस उनको वही पता है, फ्यूचर में क्या कर रहे हैं कोई उनका प्लान नहीं है। तो रेट रेस की तरह चल रहे हैं लोग, बस जहाँ आगे वाले जा रहे हैं बस उसी के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए खुद का प्लान होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। सो इसके बाद फिर डिस्क्राइब किया गया है भगवान की 3 शक्तियों के बारे में, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति एंड बहिरंगा शक्ति। ठीक है, सो हम जो है हम आते हैं किसमें, तटस्थ शक्ति, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल पोटेंसी। तो मार्जिनल पोटेंसी जो है हम इंटरनल और एक्सटर्नल पोटेंसी के बीच में आते हैं। इसलिए हम क्या है, जो जीव है ना, वो क्या बीच में है, और लिविंग एंटिटी क्या करता है, डिजायर करता है ना। अब अगर तो वो चाहे तो हायर प्लानिट सिस्टम में भी जा सकता है, और वो चाहे तो नीचे लोअर प्लानिट सिस्टम में जा सकता है। क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म की जो लाइफ है ना, ये क्या है, ये जंक्शन है, जंक्शन। ठीक है, आपको ह्यूमन फॉर्म तो मिल गया ना, अब जिस प्रकार की आप एक्टिविटी करेंगे उसके हिसाब से आपको जो है नया जीवन आपको मिलेगा। तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, कर्म। कल मैं आपको एक श्लोक बोला था ना कि जो धन है वो जमीन पर ही रह जाता है कि नहीं, इस प्रकार से बोला था। हाँ, तो जो केवल कर्म ही एक ऐसा मात्र है जो हमारे साथ में जाता है, कर्म। इसलिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की एक्टिविटी हम करते हैं। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो लोग सत्वगुण में होते हैं वो ऊपर के लोगों में जाते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो बीच में रहते हैं, और जो तमोगुण में होते हैं वो नीचे की प्राणी में जाते हैं। तो इसलिए हम कौन से मूड में हैं उसी हिसाब से हमें क्या मिलती है, बॉडी मिलती है। कर्मणा देवे नेत्रिणा, हमारे कर्म और देव मीन्स बाय द सुपरविजन ऑफ द डिवाइन नेचर। हमारे कर्म और क्या हमारी हम कौन से मूड में हैं। ठीक है, 2 चीजों के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि व्हाट टाइप ऑफ नेक्स्ट बॉडी विल बी अवॉर्डेड, राइट। सो नाउ वी विल study about the Mahatma. What is called Mahatma? Somebody else can read Mahatma. Anybody else who have not contributed yet? Hare Krishna Prabhuji. The word Mahatma refers to those who are broad-minded, not cripple-minded. Cripple-minded persons always engage in satisfying their senses, sometimes expand their activities in order to do good for others through some ism, like nationalism, humanitarianism, or altruism. They may reject personal sense gratification for the sense gratification of others, like the member of their family, community, or society, either national or international. Actually, all these activities are extended sense gratification from personal to communal to social. These activities may all be very good from the material point of view, but they have no spiritual value. The basis of such activities is sense gratification, either personal or extended. Only when a person gratifies the sense of the Supreme Lord can he be called a Mahatma or a broad-minded person. Yes. Hare Krishna. यहाँ पर
डिस्क्राइब किया गया है, हु इज अ क्रिपल माइंडेड पर्सन एंड हु इज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। तो महात्मा आर दोज हु आर ब्रॉड माइंडेड, नॉट क्रिपल माइंडेड, राइट? एंड क्रिपल माइंडेड are those who entangles in sense gratification, है ना? They are called cripple minded person. And cripple minded persons sometimes expand their activities so that they can gratify their senses so much. इसलिए वो लोग जो है कई प्रकार के वर्ड यूज करते हैं, दिस इज्म, दैट इज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, राइट, अल्ट्रिज्म है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म है, सो मेनी। लेकिन पर्पस उनका केवल एक ही है, क्या? हाउ टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस। दे आर कॉल्ड क्रिपल माइंडेड पर्सन एंड दे गिव सो मच स्ट्रेस फॉर व्हाट? फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर कम्युनिटी, फॉर देयर सोसाइटी, फॉर देयर नेशन, इंटरनेशनल। बट पर्पस क्या है आपका? सेंटर पॉइंट क्या है? हाउ टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस। एंड क्या लगा था? तो यहाँ पर कितना सेट पॉइंट बोला कि ऑल दीज एक्टिविटीज आर एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब ये जो सब चीजें यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ये क्या है? इसको क्या परिभाषा बोल गई है? दीज आर द एक्टिविटीज टू आर एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो लेकिन से क्या होगा? सेंस ग्रेटिफिकेशन और बढ़ जाता है, राइट? तो फ्रॉम पर्सनल टू कम्युनल टू सोशल, these activities may all be very good from the material point of view, but they have no spiritual value. ठीक है? तो महात्मा वर्ड क्या है? Only when a person gratify the senses of the Supreme Lord can he be called a Mahatma or broad-minded person. So now this definition clear to all of you. क्रिपल माइंडेड किसको बोला जाता है? मतलब क्रिपल माइंडेड और यू कैन से नैरो माइंडेड पर्सन, राइट? तो नैरो माइंडेड पर्सन वो होते हैं अल्प बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति, हिंदी में बोलते हैं उसको, जिनकी बुद्धि छोटी है, संकीर्ण है। क्रिपल माइंडेड और नैरो माइंडेड, बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? जो लोग केवल और केवल इंद्र तत्व के बारे में ही सोचते हैं और अपना फील्ड को विस्तार करेंगे, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड हो, कम्युनिटी, फ्रेंड, सोसाइटी, व्हाटएवर जो है, तो वो विस्तार करेंगे ताकि उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन का भी जो बाउंड्री है वो भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो फ्रॉम पर्सनल टू कम्युनल, जब उनको लग रहा है कि अभी पर्सनल में ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो फिर वो पर्सनल से इसकी तरफ बढ़ते हैं, कम्युनल की तरफ, थोड़ा और बाउंड्री बढ़ गई, उसमें भी लग रहा है कि अभी थोड़ी और कमी, थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, तो कम्युनल से फिर कहाँ की तरफ बढ़ते हैं? सोशल की तरफ। तो ये केस को बोलते हैं एक्सटेंड, दे आर ट्राइंग टू एक्सटेंड देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट? तो पर्सनल टू कम्युनल, कम्युनल टू सोशल, सोशल टू नेशनल, नेशनल टू इंटरनेशनल, और जहां तक वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते उतना वो ट्राई करेंगे पूरा। दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस। जब तक कि वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे तब तक वो पूरा प्रयास करेंगे। दे आर कॉल्ड क्रिपल माइंडेड और कृपण। देन महात्मा मीन्स ब्रॉड माइंडेड, जो खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं सोचते हैं, जो केवल किसके लिए सोचते हैं? दे ऑलवेज थिंक ओनली हाउ कृष्णा विल बी सेटिस्फाइड। केवल और केवल कृष्ण के सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर कॉल्ड महात्मा। एक्चुअली जो महात्मा वर्ड है वो सबके लिए यूज नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड? ये हमें पॉइंट समझना पड़ेगा। महात्मा वर्ड इज नॉट अ ऑर्डिनरी वर्ड। This Mahatma should be utilized only for pure devotees, not even ordinary devotees, only pure devotees. जो pure devotees वो उनके लिए महात्मा वर्ड यूज होता है। महात्मा, महात्मा का मतलब होता है ग्रेट सोल। They are great soul, they are not ordinary soul। और ग्रेट सोल उनको बोला जाता है जो केवल केवल कृष्ण के सेंसेस को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। केवल कृष्ण कैसे सेटिस्फाई होंगे, केवल उसके बारे में ही प्लान करते रहते हैं। They are called महात्मा। तो डेफिनेशन वेरी मच क्लियर है कि महात्मा किसको बोला जाता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? महात्मा गांधी, जो गांधी वर्ड के आगे जो लगाते महात्मा, वो यहाँ पर पूरी तरीके से कैंसिल, नलीफाई है, दैट रिजेक्ट, इज नॉट महात्मा। क्यों? महात्मा डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हु ग्रेटिफाई द सेंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ओनली ही इज महात्मा।
जो हम वर्ड यूज करते हैं महात्मा गांधी, देख महात्मा वर्ड शुड नॉट यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ओनली प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड दे आर कॉल्ड महात्मा। लेकिन अभी क्या है, हम किसी भी कोई भी देश के लिए कुछ किया है, ओ सच 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 महात्मा, नो ही इज नॉट महात्मा। वो देश के लिए किए हैं, भगवान के लिए थोड़ी नहीं किए हैं। जो केवल भगवान के लिए कुछ करेगा केवल उसको ही महात्मा बोला जाएगा। ये चीज हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की वर्ड के आगे भी हम महात्मा लगा देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो next word, next paragraph, can anybody read? Who has not contributed yet? Hare Krishna. In the above quoted verse from Bhagavad Gita, the words Devim Prakritim refer to the control of the internal or pleasure potency of Godhead, manifested as Srimati Radharani or Lakshmi, the goddess of fortune. When the individual jiva souls are under the control of internal energy, their only engagement is the satisfaction of Krishna or Vishnu. This is the position of a Mahatma. If one is not Mahatma, he is a Duratma or a cripple-minded person. Such mentally crippled Duratmas are put under the control of the Lord's external potency, Mahamaya. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पर भी सेम चीज बता रहे हैं, है ना, कि when individual jiva like us, है ना, we all are individual jiva, when individual jiva souls are under the control of eternal energy of Krishna, then their only engagement is the satisfaction of Krishna or Vishnu. तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में होने का मतलब क्या है? मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या बोला जाता है? when we are in the association of the devotees, then only we will try to satisfy Krishna. That is the meaning of under the control of internal energy. Means devotee association. That's very important for all of us. Without devotee association, we can't practice Krishna consciousness. That's not possible at all. Then what to say about to satisfy Krishna? That is too much far. First of all, it's all about our own bhakti. Right? That's why this devotee association is very, very important. And this is the position of the Mahatma. Okay? And those who are not Mahatma, definitely he will be called Duratma or cripple-minded person. So such minded crippled Duratmas are put under the control of Lord's external potency. That means if we are not under the devotee association, then definitely we will be in the materialistic people's associations. Because only two things are there. Krishna Surisham Maya Andhakar, Jahar Krishna Tahar Nahi Maya Adhikar. So Krishna is like sun and Maya is like a Andhakar, darkness. Where there is a sun, there is no place of darkness. तो अगर आप लाइट में हैं तो वहां पर अंधकार पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर लाइट नहीं है वहां पर क्या होगा? अंधकार होगा। दोनों चीजें साथ साथ नहीं रह सकती कभी, कि जहां लाइट भी हो और वहां अंधकार भी हो। नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। इसलिए अगर हम भक्तों के साथ में नहीं है तो डेफिनेटली हम किसके साथ में हम होंगे? अभक्त, नॉन डिवोटीज के साथ में। तो नॉन डिवोटी के साथ में अगर होंगे तो फिर वो क्या है? महामाया, भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी। तो भक्तों के साथ में रहना वो है भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति का मतलब होता है जो हमें भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। they are helpful to progress, to enhance our Krishna consciousness. And Mahamaya, that leads to away from Krishna, right? So this is, and okay, from this we will read next time. Okay, I will stop it here. If someone has any doubt, any question, any comment, you can ask. Yes, Anshuman,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रहा है? यस। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने जो तीनों बोला कि जिसका जैसा कॉन्शियसनेस होता है उसी के हिसाब से वो अपर लोग आता है या लोअर में जाता है, तो रजोगुण जो लोग होते हैं तो वो लोग इसी प्लानिटरी सिस्टम में रह जाते हैं, मतलब इसी मतलब, तो वो लोग तो मतलब हाँ ये मतलब मजा भी की है रजोगुण में पूरे, और इसी में ही ह्यूमन लाइफ फॉर्म उनको मिलता रहता है, तो वो तो अनफेयर लग रहा है मुझे थोड़ा। यस। सो द श्लोका सेज, व्हाट इज द श्लोका? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थो मध्ये तिष्ठति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। Those who are in the mode of goodness, they goes to higher planetary systems. Those who are in mode of passion, they are in this on earth planet only. But those who are in tamoguna or involved in sinful activities, they go to downwards, lower planetary systems. So that's why we should try to come on the mode of goodness. If we are not in the mode of goodness, then definitely we will be either in Rajoguna or Tamoguna. Right? So that's why devotee is very, very important for all of us. Whether we are in Rajoguna or Tamoguna, they are dangerous for all of us. Only possibility is that somehow or other we have to come in mode of goodness. Only then we are protected. Otherwise, we are in the hand of Maya. Either we are in Rajoguna or Tamoguna. Because non-devotee means either he will be in Rajoguna or Tamoguna. Both are dangerous in our Krishna consciousness. So that's why we should try to come in the mode of goodness. Or mode of goodness means good association. जैसे मैंने आपको बताया कि we should try to take प्रसादम, है ना, devotee association. अभी मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम में, मैं आपको ग्रुप पर शेयर नहीं कर पाया, वहां पर एक प्रभुपाद बहुत अच्छा सा चीज बोलते हैं, मैं आपको शायद यहाँ शो भी कर सकता हूँ। श्रीमद् भागवतम मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज सॉरी, दिस इज 30 वर्ष, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। यस, ये नहीं, हाँ ये भी एक पॉइंट है, ये जो अंशुमान ने जो प्रश्न पूछा उसका आंसर इसमें है एक्चुअली। इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट बी देयरफॉर गिव स्पेशल स्ट्रेस टू द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इन ऑल एक्टिविटीज। हम कुछ भी काम करें लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। चाहे हम बुक विष्णु करें, चाहे हम डीटी वर्शिप करें, चाहे हम कुकिंग करें, कुछ भी काम करें, लेकिन उसमें क्या, चाहे हम यज्ञ करें, इवन यज्ञ, फायर सेक्रीफाइस, हरे कृष्ण महामंत्र के बिना कोई भी एक्टिविटी क्या है? इनकम्प्लीट है इन दिस एज ऑफ कली। जब तक हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होगा, चाहे वो डीडी वर्शिप हो, चाहे वो यज्ञ हो, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्योंकि इस कलयुग का जो युग धर्म है वो क्या है? कलो तद्धरि कीर्तना, केवल हरिनाम संकीर्तन ही इस कलयुग का युग धर्म है। उसके बिना हर चीज इनकम्प्लीट है। इसलिए सुबह जो मंगल आरती होती है उसमें हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम के द्वारा ही उसको कंप्लीट किया जाता है, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग का युग धर्म है। केवल उसी के माध्यम से ही लोगों को सदगति मिलेगी, या वो लोग जो है मुक्त होंगे, या पाप कर्मों से छुटकारा पाएंगे। एक चीज मैं आपको लोगों को बता रहा चाहता था, वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। हाँ ये पॉइंट है। The Kanishta Adhikari or neophyte devotee is therefore advised to visit the temple every day, and see the form of Lord regularly. Thus, the neophyte devotee can be freed from the bondage of fruitive activities. तो neophyte devotee किसको बोला जाता है? There are three type of devotees. neophyte means कनिष्ठ अधिकारी means neophyte. दूसरा होता है क्या?
मीडियम मतलब मध्यम अधिकारी, तो तीसरे होते हैं उत्तम उत्तम अधिकारी, प्योर डिवोटीज। तो कनिष्ठ अधिकारी मतलब होता है जो नए नए अभी भक्ति में भी आए हैं, है ना। और दोज हु आर नॉट इनिशिएटेड, है ना, दोज हु आर नॉट इनिशिएटेड एंड दोज हु केम कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट नाउ ओनली, लाइक 1 साल हुआ है या 2 साल हुए हैं भक्ति में आए हुए, वो सब कनिष्ठ अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। और या जिनका दीक्षा नहीं हुआ है, ठीक है, कनिष्ठ अधिकारी है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको रेगुलरली मंदिर जाना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। अगर आपके घर से अगर मंदिर पास में, तो आपको हर दिन आना चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, खाली मंदिर आना है और भगवान के दर्शन करके चले जाना, बस केवल इतना ही करना है बस। अगर प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर आप केवल इतना भी करते हो कि मंदिर आके केवल भगवान के दर्शन को देखते हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे devotee कैन बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिलिटी। क्योंकि भगवान के दर्शन करने में इतनी शक्ति है, तो भगवान को देखने से, भगवान क्या है, भगवान निष्पाप हैं, भगवान पूरी तरीके से शुद्ध हैं। तो जिनको देखने मात्र से व्यक्ति क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो वो भगवान के दर्शन करने में, केवल दर्शन करने में इतनी शक्ति है। तो सोचो जो अगर कोई व्यक्ति जो भगवान की पर्सनल सेवा करेगा, उसको कितना मर्सी मिलेगा। देन यू नो, जब दर्शन करने में इतनी शक्ति होती है, इतनी पोटेंसी है, तो देन व्हाट अबाउट टू से अबाउट दो पर्सन हु इज पर्सनली एंगेज इन कृष्णा सर्विस, इस तरीके से। तो दैट आई वाज पढ़ रहा था। ओके, तो हियर इट इज नाउ। डाउट क्लियर हुआ आपका अंशुमान प्रभु? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली वो मतलब जो लोग रजोगुण में पूरा रहते रहे, मतलब अपने लाइफ टाइम में रहते हैं, भगवान के पास नहीं आते, रजोगुण में पूरा रहते हैं, तो उन लोग वो लोग मतलब निचली श्रेणी में चले जाते हैं नेक्स्ट लाइफ से, जैसे कि कुत्ते बिल्ली का ऐसा ही उसी टाइप पे बाद में जाते हैं। उसके बाद वो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में भी चले जाते हैं, जैसे कि जो नीचे जो सब लोग हैं। यस, प्रभुपाद भी बोलते हैं कि इन वृंदावन, Vrindavan is Dham, but even in Vrindavan, those who perform sinful activities, they becomes dogs, hogs, and monkeys in the next life. It is not that it is Dham, so I will do whatever I want. No. Prabhupada strictly says, even in Dham, if you commit sinful activity, then you have to take birth in the next life as a dog, hog, or monkey. Then in the next life you will get liberated. That is the potency of Dham. But at least one life you have to wait. If you commit aparad or if you will engage in any type of sinful activity. Right? So we have to be very, very much careful. Okay, Abhay. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, टर्नर प्रणाम। प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि लाइक ये 3 गुण हुए, तो इसमें से प्रभावित होते हैं, तो जैसे कि प्रभु जी सतोगुण हुआ तो हाईली प्लानिट पे जाते हैं, तो प्रभु जी आखिर भोग करने ही जाते हैं, भोग करने के बाद फिर से वही मतलब भोलोक में ही आते हैं, यही अर्थली प्लानिट पे ही आते हैं। और फिर अगर तमोगुण में हुए तो फिर डाउनली प्लानिट यानी नीचे हेलिस प्लानिट पे जाएंगे, तो फिर से उधर भोग करके फिर आखिर आएंगे तो भोलोक में ही। और जो रजोगुण वाले होते हैं वो प्रभु जी किधर जाते हैं? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है प्रभु जी कि जब वो लोग लाइक एवरी लाइफ टाइम के बाद वो लोग ऐसे भोगने जाते हैं सारे सोल और फिर वापस से आते हैं, तो वो कैसे मतलब निर्धारित होता है कि वो कौन सा बॉडी लेंगे या कैसा है ये? एक बार समझा दीजिए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पहला प्रश्न तो सिंपल है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि सतोगुण वाले ऊपर जाते हैं, तमोगुण वाले नीचे जाते हैं। रजोगुण वाले केवल इसी अर्थ प्लान पे रहते हैं, ठीक है। वो ना नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे, ठीक है। उनको यहीं पर ही इसी अर्थ प्लान पे ही उनको अलग अलग प्रकार की योनियां मिलेंगी। दे विल वॉन्डर हेयर ओनली इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। दे विल नाइदर मूव अपवर्ड नॉट डाउनवर्ड। यहीं पर ही उनको अलग अलग प्रकार की योनियां दी जाएंगी, ठीक है। जब तक कि वो, ठीक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो उसको पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार एक प्रकार से दूसरी प्रकार से बॉडी उसको मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से उसको घूमना है यहाँ पर। तो मतलब उसकी स्थिति कैसी है, तटस्थ शक्ति जैसी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो जीवात्मा होती है वो तटस्थ शक्ति है,
वो ना तो मार्जिनल पोटेंसी है ना ही इंटरनल पोटेंसी है, वो बीच का है, किनारा है, वो किनारा जैसे सी शोर होता है, समुद्र का जो तट होता है उसकी पोजीशन वैसी है, ना तो वो पानी के अंदर है ना ही पानी के बाहर है, वो बीच में है, वो बीच में फंसा हुआ है। सो रजोगुणी पीपल आर लाइक दैट ओनली, अंडरस्टैंड? ना तो वो ऊपर जा पा रहे हैं ना ही नीचे जा पा रहे, वो बीच में फंसे हुए लोग हैं, वो बीच में धारा फंसे हुए हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। अच्छा, कम से कम तमोगुण वाले अच्छे हैं, कम से कम इतना पाप कर्म किए, अच्छे से पाप कर्म किए तो नीचे जाके भुगत रहा है एटलीस्ट, कम से कम फिर ऊपर तो आएगा ना, एटलीस्ट उसको मौका मिल रहा है कि हाँ अभी अच्छे से कर्म करूंगा। वो सतोगुणी है, कुछ पुण्य पुण्य कर्म किया होगा तो ऊपर जा रहा है, ऊपर भोग करेगा, फिर से आएगा तो यहीं पर आएगा। रजोगुणी व्यक्ति तो ना इधर के ना उधर के। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ना तो ना हमारे लिए रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना सतोगुण है। डिवोटीज मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। हाँ, भगवान बोलते हैं अर्जुन से, निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, जस्ट ट्रांसेंड योरसेल्फ टू फ्रॉम दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। दिस इज द पर्पस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंड योरसेल्फ, है ना। वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, क्योंकि हम चाहे सतोगुण में रहें चाहे तमोगुण में चाहे रजोगुण में, we have to take body again and again, again and again. So what is the use, like you have you have done some piety in this particular life, so according to this piety you will promote it to the higher planetary system, and according to that piety you will enjoy there, but again you have to come back there, right? So what is the use? After all, the same problems are the same: birth, old age, disease, death. The only point is that in the higher planet systems they have a long life, so they can enjoy a long time there. But once after finishing that piety, again they have to come back here. So what is the use? That's why devotees they should never aspire for such type of facility. That's why devotees they should never aspire to go to heaven even. Even devotees they should never aspire for liberation even. Devotees they will never aspire for liberation. Right? Devotees they should simply want to serve Krishna Supreme Personality of Godhead. Even pure devotees they should never aspire to go to back home, back to Godhead, क्योंकि ultimate purpose है हमारा. This is something very deep thing I am telling, right? But Prahlad Maharaj says, okay, I'm not aspire to go to, like once, Dhruv Maharaj. Once Dhruv Maharaj, when he was performing austerity, Kubera, demigod Kubera comes and told to Dhruv Maharaj, I am very pleased with your austerity. Now please ask, I am ready to give you everything. I am ready to give you everything. Kubera, you know who is Kubera? Kubera is a demigod of money. Right? So, treasurer. He's a treasurer. His department is treasurer. Right? So, he told to Dhruv Maharaj, okay, I am very happy and please ask what you want. I am giving everything to you. हर प्रकार का लक्ष्मी तुम्हें, ज्वेल्स, जो भी तुम्हें चाहिए हम दे दूंगा. Dhruv Maharaj told, I don't want anything. I simply want to serve Supreme Personality of God. So he completely denied. See, this is the situation, this is the position, this is the mood of the pure devotees. They never aspire for any type of material post positions. No. Because they know very well that these things are temporary. These things are temporary. And these things are, these things distract from the path of Krishna consciousness. Okay, you will award me all type of jewelry, but what will happen if my mind will distract from Krishna? Then what is the use of that? So I don't want to take any risk. So I don't want. So this is the example for all of us actually. Even अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास आए and he will tell us, Abhay Prabhu, I am very pleased with your Krishna consciousness. You are doing very nice bhakti. I am ready to give you 50 crore rupees. Please leave this chanting now.
You have sufficiently done. Your quota is finished now. I am ready to give you 50 crore रुपए. Will you take 50 crore rupees? नो. क्या करूंगा? और 50 करोड़ रुपए मिल जाने के बाद मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा तो क्या करूंगा उसको? है कि नहीं? What I will do? डेफिनेटली 50 करोड़ जब मिलेंगे तो भक्ति क्यों करूंगा फिर मैं? है कि नहीं? क्यों करना है भक्ति? इसलिए भगवान भक्तों को इस प्रकार का ऑपुलेंस जनरली प्रोवाइड नहीं करते हैं. ठीक है, जनरली नहीं देते हैं. वो आपकी भक्ति के स्तर को देख के ही देखते हैं. वो देखते हैं कि हाँ, इनको देने से ये बिल्डर्ड होंगे या नहीं होंगे. अगर वो देखेंगे भगवान के नहीं, ये भी कन्विंस नहीं हुआ है भक्ति, अगर इसको मैं पैसा दिलाऊंगा अगर तो ये बिल्डर्ड हो जाएगा, तो भगवान नहीं देंगे. लेकिन भगवान चेक करते हैं पहले इसको कि हाँ ये फिक्स्ड है भक्ति में, इसको मैं कितना भी दूंगा ये कभी बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जितना भी दूंगा वो मेरी सेवा में आएगा. इसलिए भगवान वो हमारे फेथ के हिसाब से हमें प्रोवाइड करते हैं. चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, हमारा जितना फेथ है ना भगवान के प्रति, उसके हिसाब से ही भगवान सुख दुख देते हैं. वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. जैसे प्रहलाद महाराज का अनफ्लिंचिंग फेथ था भगवान के ऊपर, अनफ्लिंचिंग फेथ था, इसलिए भगवान ने उतने लेवल का कष्ट भी दिया उनको, प्रहलाद महाराज को, क्योंकि उतने लेवल का उनका फेथ था भगवान के प्रति. वो लेकिन जीत गए, वो सबको क्रॉस कर दिया, हर स्टेज को क्रॉस कर गए, क्योंकि वो उतना उनका फेथ था भगवान के प्रति. हमारा फेथ नहीं है उतना, है कि नहीं? इसलिए उतने लेवल का कष्ट भी हमारे जीवन में नहीं आता है, क्योंकि भगवान को पता है ये नहीं झेल पाएगा. थोड़ा सा छींक होता है, थोड़ा सा बुखार होता है, दूसरे दिन हम मॉर्निंग प्रोग्राम चैंटिंग में एब्सेंट हो जाते हैं. तो हम क्या ही भक्ति करेंगे, है कि नहीं? और अंशुमान गुरु कॉल करके परेशान हो जाते हैं, कोई उठता ही नहीं है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ दिस कलीग चीला. लेकिन हम क्या ही भक्ति करेंगे, बहुत ही बड़े. इसलिए लेवल की बात है. तो ये पहला प्रश्न. दूसरा प्रश्न क्या था अभय तुम्हारा? प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे कि हाईली प्लैनेट या फिर मतलब डाउनली प्लैनेट पर अगर जाते हैं तो उधर से जब भोग करके वापस आते हैं तो कौन सा रूप मिलता है, क्या होता है? प्रश्न है कि जब हम दूसरे प्लांट में चले जाते हैं भोग करने के बाद, हम इधर आते हैं तो फिर हमें कौन सा मिलता है? ठीक है, तो उधर से जब यहाँ पर आते हैं तो भोग करने के बाद जब जैसे वहां पर भोग कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा बॉडी था, ठीक है, आपके नेचर के हिसाब से मिलता है. वहां पे भी जैसे वहां पर इंद्र है, ठीक है, तो इंद्र वहां पर जो है वहां के राजा हैं, ठीक है, स्वर्ग के राजा हैं. तो वहां पर क्या है, ऐसे नहीं आते हैं हम, डायरेक्ट नहीं आते हैं कि हमारा कोटा का जब खत्म हो जाता है, जब हमारा पार्टी का जब कोटा खत्म हो जाता है तो फिर भगवान कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जिसकी वजह से फिर हमें नीचे गिरना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि हमारा पार्टी खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली हम नीचे गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है. जब खत्म हो जाता है तो भगवान फिर क्या करते हैं, इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं कि फिर हमें नीचे आना पड़ता है. जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल इंद्र हैं, ठीक है, तो इंद्र को क्या हुआ था, बृहस्पति जो गुरुदेव उनको ने रेस्पेक्ट नहीं किया था, तो बृहस्पति ने फिर उनको क्या किया, शाप दिया कि तुम जो है हॉग बन जाओ, तुम क्या बनो, हॉग बन जाओ. तो जब हॉग बनेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तो वो नहीं, उनको नीचे आना पड़ेगा. तो इस प्रकार से किसी न किसी कर्ज के माध्यम से भगवान इसको अरेंजमेंट करते हैं, जिसके माध्यम से फिर उसको नीचे आना पड़ता है, उसको फिर से फिर वो करना है. ऐसा नहीं है खाली केवल कर्ज के माध्यम से ही नीचे आना है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. मतलब वो डिपेंड करता है, मतलब कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब जो व्यक्ति है वो किस मूड में है, वो किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हायर प्लानिंग सिस्टम है वहां भी व्यक्ति क्या है कि इतना भोग करता है कि हालांकि क्या होता है, जो ऊपर के जो प्लानिंग सिस्टम है वहां पर लोग भोग तो करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हायर प्लानिंग सिस्टम में भोग करेंगे वो, लेकिन भगवान को कभी भूलते नहीं है. लेकिन इधर क्या है, अर्थ प्लानेट पे हम भोग करते हैं लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं. दिस इज द डिफरेंस. जैसे इंद्र है, चंद्र है, वरुण, जो भी है, जितने भी डेमो गॉड्स हैं, वहां पर भोग की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है. हम तो कुछ भी भोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीट नेग्लिजिबल. वहां पुलिस बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम दे नेवर फॉरगेट कृष्णा, भगवान को कभी भूलते नहीं.
लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही सेंस जजमेंट मिलता है हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए वो हमसे ऊपर ऊपर की पोजीशन में है, ठीक है। Although there are a lot of facility of sense enjoyment, but still they never forget Krishna. That's why they are superior to me. और ऐसा नहीं है कि वहां पर जो ऊपर प्लानिट सिस्टम में जो पहुंच जाते हैं उनको हर सबको ही नीचे गिरना पड़ता है, ऐसा नहीं है। कुछ क्या होते हैं जो वहां जाने के बाद जो भक्ति करते हैं, सही से भक्ति करते हैं, वो वहीं से ही वो और उसके ऊपर का जो प्लानिट है वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहां पर भी डिपेंड करता है कि आपका भक्ति का लेवल क्या है। अगर अगर ज्यादा संस्कृत करोगे, भक्ति नहीं करोगे तो फिर नीचे करना पड़ेगा। तो वहीं पर अगर भक्ति में सुटेबल हो तो फिर और ऊपर चले जाओगे। तो वहां पर आपका डिमोटिव मतलब क्या बोलते हैं, प्रमोशन भी हो सकता है और डी प्रमोशन भी हो सकता है दोनों चीजें है वहां पर, हमेशा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका भोग करने का टेंडेंसी कितना है और भगवान की भक्ति करने का मूड कितना है, उसके ऊपर से डिपेंड करेगा। वो यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं, मतलब कि उसको किस प्रकार का शरीर मिलेगा, वो उसके हिसाब से उसको देखना पड़ेगा उधर। वी कांट टेल दैट। तो बेसिकली प्रभु जी बात यही हुआ ना कि हम लोग जैसे अभी के वक्त पे पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो उससे हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हम लोग और आगे और ज़्यादा धन कमा सकते हैं और अच्छे तरीके से रह सकते हैं। पर अगर हम लोग उसको ऐसे ही फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसे में उड़ा देंगे तो फिर से हमें फिर कमाने के लिए फिर नीचे जाना पड़ेगा, मतलब और लो लेवल काम सब करना पड़ेगा, वैसे टाइप का हुआ ना। जनरली क्या होता है एक्चुअली इस भौतिक जगत में, लोग केवल जो है जो चार पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो केवल तीन चीजों में ही फंसे हुए हैं। क्या? धर्म, जो हम बात कर रहे हैं पाइटी, राइट, पायस एक्टिविटी की हम जो बात कर रहे हैं, तो वो धर्म कर रहे हैं, पहला काम कर रहे हैं, फोर पुरुषार्थ का फर्स्ट एक्टिविटी दे आर डूइंग धर्म, पाइटी। लेकिन किस पर्पस के लिए? अर्थ, ताकि उससे क्या आएगा? पैसा आएगा, मनी, दे वांट मनी। But as soon as money will come, then for what purpose they will utilize? For to fulfill their material desires, to fulfill their lustful desires. So they are doing dharma for what? For their earth will come, then they will utilize for lust. और जब वो काम वासना में फंस जाएंगे, इधर तरह फंस जाएंगे, तो वेयर इज द पॉइंट फॉर लिबरेशन? तो धर्म, अर्थ एंड काम, मोक्ष तो होता ही नहीं है। मोक्ष कब होता है? जब वो इंद्रिय तृप्ति कर करके जब पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि बस अब कोई फायदा नहीं होने वाला, बहुत भूख कर लिया लेकिन हर स्टेप में विफल ही हो रहा हूँ, तब जाके फिर वो क्या होता है, शास्त्र पढ़ता है, वो कुछ इधर उधर, फिर वो देखता है कि हाँ इस्कॉन कहाँ पर है, कहाँ पर इस्कॉन है, मुझे जाना है, भक्त कहाँ मिलेंगे, लेकिन क्यों? वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो बहुत भोग किया उसने, लातें घली माया की बहुत ठोकरें खाई उसने, सोच तो रहा था कि भोग करूंगा लेकिन भोग कर नहीं पाया बेचारा। माया ने, देवी जी ने बहुत लाते मारी उसको। तो फिर वो ढूंढता है कि भुवनेश्वर में कहाँ इस्कॉन है, बनारस में कहाँ इस्कॉन है, नेपाल में कहाँ इस्कॉन है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द जीवास। जब तक कि माया की लातें ढलती नहीं तब तक वो सरेंडर नहीं करता है भगवान को। ये हमारी सिचुएशन है कि नहीं? तो भगवान यही बोलते हैं कि देखो बेटा, अच्छे से रहो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन तो है ही, मेरी जो साइड में जो देवी जी खड़ी हैं वो तो है रेडी फिर, है ना। तो दो ऑप्शन भगवान ने दिए हैं, ठीक है, आइदर चूज मी, ठीक है, और माया। जैसे उनकी प्रभुपाद की जो पत्नी थी राधा रानी, उन्होंने क्या बोला था, सॉरी प्रभुपाद बोले थे उनकी पत्नी को, राधा रानी क्या बोले, आइदर टी और मी, या तो टी या मी, तो वो बोलेंगे टी, तो बोले ठीक है, हरे कृष्णा, चलते, हमारा क्या काम है यहाँ पर, चाय पियो तुम। तो हमारी कंडीशन वही है कि नहीं? वी हैव टू चूज। दिव्यांशु गुरु का प्रश्न ले लेते हैं, अच्छा ठीक है प्रभु, मेरा भी इसका कुछ। काफी समय से वेट कर रहे हैं वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया। मेरा पहला क्वेश्चन था कि अगर कोई इंसान अगर मतलब भाई मतलब बहुत समगुण सॉरी बहुत सतगुण और रजगुण में है, तो उस केस में क्या हो सकता है? क्या मतलब नेक्स्ट बर्थ में शायद उसको कोई मतलब ऐसे जगह मतलब बर्थ मिले कि वो मतलब ऐसे साधुओं के फैमिली में, डिवोटीज के फैमिली में, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? तो उसका आंसर मिल गया आपको? जी प्रभु जी, आपने मेरा एक्चुअली डाउट था कि मे बी
किसी मतलब साधुओं के फैमिली में, या फिर इनके अगर हायर प्लेनेटरी सिस्टम में अगर वो चला भी जाता है, तो मेरा डाउट था कि मतलब मतलब भगवान की भक्ति करने का चांस मिलेगा। तो आपने तो बता ही दिया कि हायर प्लेनेटरी सिस्टम में ये डिफरेंस रहता है कि वो लोग एंजॉयमेंट करते हैं मगर भगवान को कभी नहीं भूलते, तो मिल गया उसका। हालांकि क्या है कि हर प्लानिट सिस्टम में क्या है ना कि भूख, व्यक्ति हर प्लानिट सिस्टम में जाता है क्यों है? भूख करने के लिए ना, भूख जी करने के पर्पज से जाता है। ठीक है, तो वहां पर एंजॉय करने की फैसिलिटी ज्यादा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम दे नेवर फॉरगेट कृष्णा। They know that okay, yes, Krishna is the supreme person of Godhead, and I have to satisfy Krishna also. So they do bhakti there. They do bhakti there, right? Doesn't matter कितना भी संस्कृत वो लोग करें, लेकिन वो लोग कभी भी शास्त्र के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। वो लोग इंद्र तृप्ति करते हैं, हम भी इंद्र तृप्ति यहाँ पर करते हैं, लेकिन वो शास्त्र के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए करते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, उसको ब्रेक कर देते हैं, हम नहीं मानते किसी शास्त्र। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द प्रॉब्लम। तो प्रभु जी, जो लोग मतलब बहुत सतगुण और रजोगुण में रहते हैं उनका क्या होगा? मतलब वो अर्थ में ही रहेंगे मगर किसी मतलब डिवोटीज के फैमिली में उनको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, तमोगुण का तो मैंने बताया, तमोगुण के तो पता, जो लोअर प्लेनेट नहीं नहीं सिस्टम में प्रभु जी, जाते हैं। सतगुण और रजोगुण में जो लोग रहते हैं मतलब दोनों में, ऐसा भी तो हो सकता हाँ, सतोगुण, सतोगुण तो मैंने बताया। सतोगुण में तो क्या होता है, अगर ऊपर जाके अगर वो, हाँ वो, हाँ डेफिनेटली यू आर टेलिंग अबाउट द नेक्स्ट लाइफ, राइट? नेक्स्ट लाइफ, है। यस, इन द नेक्स्ट लाइफ देन व्हेन दे विल कम, तो सतोगुणी व्यक्ति जो है वो नेक्स्ट डेफिनेटली he will be awarded in human form of life, and in some like either brahmanas families or in devotees families, so that in the next life he can uh, begin start the Krishna consciousness, और वो साधुओं के कांटेक्ट में आ पाए, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया है। तो देन डेफिनेटली कृष्णा विल गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स। बट रजोगुणी जो है, देन अकॉर्डिंग टू हिज नेचर एंड कर्मा, लाइक कर्मणा दैव नित्रणा, अकॉर्डिंग टू हिज एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू हिज मूड, लाइक किस प्रकार के मूड में वो है। जैसे हाँ रजोगुण, रजोगुण से तुम बोल रहे हो कि हाँ रजोगुण में है, तो रजोगुण वाले जो जीव हैं, उसमें से किसी ने कोई ना कोई एक योनि मिलेगी, है ना? रजोगुण वाले भी तो जीव है ना, जैसे जैसे काऊ है, गाय, तो गाय सतोगुण में आती है, राइट? लेकिन लॉयन है, वो रजोगुण में आता है। तो ही विल बी अवॉर्डेड इन सम बॉडी, जो रजोगुण में कुछ बॉडी होगा, समथिंग इस तरीके से होगा। एक्चुअली ये जो कार्मिक का जो साइकिल है, ये बहुत ही जटिल है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना? क्योंकि किस बॉडी को कौन सी जीव को कौन सी बॉडी मिलेगी नेक्स्ट लाइफ में, है ना? ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसका केवल दो चीजों के ऊपर ही डिटरमाइन किया जाता है हमेशा, जो कि भागवत में ये बोलता है, कर्मणा दैव नित्येना। बस हमारा एक्टिविटी क्या है, हम कौन सा काम कर रहे हैं, हमारा एक्टिविटी क्या है, एंड दैव नित्येना, अंडर अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिवाइन नेचर, है ना? हम कौन से मोड में हैं, और ठीक है, इस प्रकार से ही उसको दूसरा शरीर मिलता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और सेकंड क्वेश्चन था, मतलब आपने एक्चुअली एक बार बोला था कि मतलब दिन में कुछ एग्जैक्टली पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, तो आपने बोला था कुछ 64 ऐसे कुछ रहता है, अगर हम मंगल आरती अटेंड करते हैं तो उसमें से 42 ऐसा कुछ कंप्लीट हो जाता है। वो थोड़ा फिर से बोल दीजिए, याद नहीं मुझे। हाँ, वो लेकिन इस पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है ना, वो तो सेपरेट क्वेश्चन हो गया। जी प्रभु जी, मैंने तो सेपरेट है मगर मुझे याद नहीं आ रहा था, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो वो बता रहे थे कि सुबह का जो मंगल आरती होता है, मंगल आरती करने से मतलब भक्ति के टोटल 64 अंग हैं। देयर आर 64 लिंक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय श्री रूप गोस्वामी इन नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो वो टोटल जितने भी भक्ति के जो पार्ट हैं वो 64 हैं। जैसे भगवान को प्रणाम करना, तुलसी में पानी देना, प्रदक्षिणा करना, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार से टोटल 64 लिम्स हैं। तो मंगल आरती करने से 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा जो लिम्स हैं वो कवर हो जाते हैं आउट ऑफ 64। दैट्स व्हाई मॉर्निंग पुरोमा इज वेरी वेरी पावरफुल। So that is the question of the Bhyansu Guru. Okay. Abhay Guru, what is your question? Oh, प्रभु जी अभी Prashant Guru has some question. Prashant Guru has some वो तो question. चले गए।
वो चले गए, ओके। वो अब है, प्रभु you जी, can continue. आपने अभी 4 पुरुषार्थ कहा, उसमें बोला आपने कि धर्म करते हैं टू गेन अर्थ और अर्थ से काम की तरफ जाते हैं। प्रभु जी, इसमें धर्म और कर्म में डिफरेंस क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म भी एक कर्म ही है ना, धर्म भी एक कर्म है, लेकिन दैट इज गुड, गुड कर्म। धर्म मीन्स गुड कर्म। That way you can understand. There are two types of karma: good karma and bad karma. Okay, so dharma means good karma, pious activities. हम बोल रहे हैं ना एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब क्या होता है? कर्मा। एंड पायस मतलब क्या होता है? गुड। सो गुड एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड धर्मा, बट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, बॉडी प्लेटफॉर्म, लेकिन शरीर के स्तर पर, शरीर के स्तर पर हो रहा है वो, है ना। बट एक्चुअली, लेकिन बोला जाए तो दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ धर्म। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? धर्म मीन्स जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड धर्म। जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कभी चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड धर्म। ठीक है, बट लेकिन अगर फिर भी लगे इन पब्लिकली, ठीक है, भी से दो दो प्रकार के धर्म है, एक आत्मा का धर्म और एक शरीर का धर्म। तो यहाँ पर जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो धर्म आया है, ये किसका, यहाँ पर किसकी धर्म की बात की जा रही है? शरीर का धर्म। शरीर का धर्म, शरीर का धर्म क्या है? भूखे लोगों को खाना खिलाना, फ्री हॉस्पिटल खोलना। तो वो दे आर डूइंग धर्म, बट शरीर के स्तर पर दे आर डूइंग, नॉट आत्मा के लेवल पर। ओके। तो प्रभु जी, इसको ये एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं क्या? एक एम्प्लॉय वाला, एक एम्प्लॉय अपने बॉस के अंडर में काम कर रहा है, तो उसे यानी अर्थ मिल रहा है, यानी पैसा मिल रहा है। फिर वो अर्थ को अपने डिजायर्स के लिए यानी काम के लिए उसे स्पेंड कर रहा है। पर अगर वही काम अपने डिजायर्स के बदले श्री कृष्ण के लिए करेगा, भगवान के लिए करेगा, तो वो मोक्ष को पाएगा, वरना फिर वो धर्म करता ही रहेगा, और अर्थ फिर काम फिर धर्म। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, या। हो गया प्रभु जी, थैंक इतना ही यू। समझ। ओके, प्रशांत प्रभु, आपका कोई प्रश्न था? नहीं था। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आई विल स्टॉप इट हियर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।